Hello aspirants, welcome to Sri Rama YT channel. In Geography Explained series where we discuss and explain important geographical terms under 20 minutes. In this series, this is the day where we discuss the type of mountains. Mountains are what? These are natural elevation of earth surface. उसे हम माउंटेन कहते हैं. जनरली इसके स्लोप स्टीप होते हैं, हाइट बहुत ज्यादा होती है और एक समिट जैसा स्ट्रक्चर भी हमें दिखाई देता है. माउंटेन्स आर वेरी वेरी क्रूशल. दे आर द सोर्स ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल्स. They are source of multiple rivers. They are celebrated in India as spiritual persons also, like Himalayas. Himalaya is called a sage in Indian tradition. It is also a very important source of tourism these days. Regulate the climate the way Himalayas does in case of monsoon of India. So absolutely critical landforms for us to discuss. Now, before I go on further explaining the type of mountains, this mentorship that Sri Rama is offering is very, very crucial in your civil services preparation, because eventually, at the end of the day, the good advice, if received on time, is by far the most significant thing that can happen in your life. Many a times क्या होता है कि we think of climbing the stairs too fast. हम सीढ़ियां जल्दी चढ़ना चाहते हैं और ऐसा बहुत बार होता है जब हम सीढ़ियां ऊपर भी चढ़ जाते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि द वॉल ऑन विच द स्टेयर इज वो सिंपली रॉन्ग. जिस दीवार पे वो सीढ़ी लगाई गई थी वो दीवार ही सही नहीं थी. सो स्ट्रैटेजी के लिए टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन एवरी इंडिविजुअल मेंटरशिप इज वेरी वेरी crucial. You don't have to do anything. Just look at the description of the video, click the link on it, file the form, and a very informed, very motivated, well read mentor will contact you. Now, the type of mountains, the first type obviously is the fold mountains. These mountains are massive mountains. They are there because of significant tectonic activities. So our earth has multiple layers. जैसे लिथोस्फेयर है, जैसे मेंटल के अंदर एस्थेनोस्फेयर है. वी टॉक अबाउट द आउटर कोर एंड द इनर कोर. In this case, we are talking about plates. Plates are nothing but irregularly shaped rocks जिनके ऊपर हमारे ये मैसिव ओशंस और मैसिव कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं ऑन द सेमी लिक्विड मैग्मा और लावा जो कि है मेंटल के अंदर, जिसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर. So these plates, they keep moving from one place to another. There are multiple types of plates, some minor, some major. तो जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो आपस में इंटरैक्ट भी करती हैं. कई बार एक प्लेट, मेजर प्लेट may be interacting with the another major plate in a way that it may be subducting under it. कन्वर्जेंट बाउंड्री जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स का जन्म होता है. तो फोल्ड माउंटेन्स एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इसीलिए कैटेगरी हमारे लिए है. दिस इज हाउ द फोल्ड माउंटेन्स लुक फ्रॉम द स्पेस. स्पेस से ये ऐसे दिखाई देते हैं. You don't have to go into the nitty-gritty technicality into it. Just pick up one paper. एक पेपर उठाओ और उस पेपर को मोड़ना या पुश करना, कंप्रेस करना शुरू करो. जैसे ही कंप्रेस करना शुरू करोगे उसमें ऐसा स्ट्रक्चर हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई देने लगेगा. इमेजिन दिस इज द पेपर, दिस इज अ पेन विच आई एम होल्डिंग. इसको अगर मैं इसे पुश करना शुरू करूं दोनों साइड से तो ये कंप्रेस होना शुरू होगा. धीरे धीरे यहाँ पे एक बल्ज क्रिएट हो जाएगा क्योंकि जो मटेरियल है ये आपस में जुड़ता जाएगा. ऐसे ही यहाँ पे ऐसे फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है. These are massive mountains like Himalayas, like Andes. These are what? Alps of Europe. These are fold mountains. One of the greatest peaks you have ever find on this planet are found on fold mountains. तो बहुत ही सिग्निफिकेंट ये माउंटेन होते हैं. और इंडियन प्लेट जो कि मूव कर रही है, millions of years it takes for the plate to move. It is moving and eventually this Indian plate collided with the Eurasian plate. ये Eurasian plate है and it is creating a subduction zone. ये subduction boundary है जिसमें हिमालयास का जन्म हुआ है. हिमालयास got formed.
This is the story of fold mountains. Now comes a very interesting category called block mountains. Remember, we are talking about the type of mountains on the basis of their origin. There are a variety of ways through which we can dissect the type of mountains, like location. Some are oceanic mountains, some are continental mountains. On the basis of when it were formed, Precambrian era or some another era. But most of the time, the most of the talkative points which comes from the type of mountains on their origin. तो जो फोल्ड माउंटेन था वो ओरिजिन के बेसिस पे था, ब्लॉक माउंटेन भी ओरिजिन के बेसिस पे। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जब हम कंप्रेशन की बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे फोल्ड माउंटेन्स की। इस पेन को जब मैं कंप्रेस कर रहा था तो हम बात कर रहे थे फोल्ड माउंटेन्स की। इफ आई स्टार्ट पुलिंग इट इन द अपोजिट डायरेक्शन तो इसको हम बोलेंगे टेंशन फोर्स। जब ये टेंशन फोर्स ऑपरेट करती है तो ब्लॉक माउंटेन्स का जन्म होता है। जब मैसिव जो रॉक स्ट्रक्चर है उसमें अप हीवल आता है, कुछ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ आ जाता है, कुछ स्ट्रक्चर डाउनवर्ड चला जाता है, जिसकी वजह से वैलीज भी बनती हैं। तो जो स्ट्रक्चर ऊपर आ जाता है रॉक्स का, सडन अपलिफ्ट होती है, उसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। वी हैव एन एग्जाम्पल ऑल्सो, यस, सीरा नेवाडा, कैलिफोर्निया, दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स। जनरली सेडिमेंट्री जो एरिया होता है जोन का, वहां पे ये हमको माउंटेन्स दिखाई देते हैं। इट इज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट? टेंशन। सो इन इंडिया फॉर एग्जांपल सतपुड़ा और जो विंध्या माउंटेन रेंजेस है मध्य प्रदेश में प्राइमरली जो लोकेटेड है, वो क्या है? वो ब्लॉक माउंटेन्स है, बिकॉज इंडियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स और सबडक्टिंग अंडर द यूरेशियन प्लेट, तो उसके अलग अपने स्ट्रेस जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से जो इंडियन प्लेट है, ये जो इंडियन प्लेट है जो मूव कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, यहां पे वो माउंटेन्स मिलते हैं। इसीलिए वी हैव द रिफ्ट वैलीज ऑफ व्हाट? नर्मदा एंड ताप्ती, एंड वी हैव द ब्लॉक माउंटेन्स ऑफ सतपुड़ा एंड विंध्या। इट इज बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट कंप्रेशन, रिजल्टेंट टेंशन फोर्स, जो कि ये जो प्लेट हमारी जब सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट के अंदर, जिसकी वजह से जनरेट ये हो रहे हैं। So these are the examples of what? The block mountain types. Then we have the volcanic mountains. These mountains are formed because of volcanic eruption of lava. Lava is what? Nothing but molten rocks, जो कि अर्थ के क्रस्ट में होते हैं, और वो जब बाहर आते हैं with a lot of intensity, lot of violence, carry a lot of debris also along with them, gases, ये सब बाहर जब आता है और लावा बाहर आता है तो सॉलिडिफाई होता है, उसके बाद माउंटेन्स का निर्माण होता है। सो किंडर कोन, कंपोजिट, लावा डोम, शील्ड, मल्टीपल टाइप्स के हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स पाए जाते हैं, जिनमें से वन ऑफ द फोरमोस्ट एंड मोस्ट फेमस आर कंपोजिट वोल्केनोस। जैसे हमारा टाइप एक वोल्केनिक माउंटेन का ये किलोमंजारो, माउंट किलोमंजारो, विच इज देयर इन Africa. This is one of the most serene, beautiful looking mountain. It is nothing but a volcanic mountain. Volcanic eruption की वजह से ये mountain का formation हुआ है. There is a very famous volcanic mountain in country of Japan also. Can you name it? Write that on the comment section to tell me whether you know it or not. उसके बाद हमारे पास जो टाइप्स होते हैं वो रेसिड्यूअल इरोजनल माउंटेन्स भी होते हैं। ये माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन्स हैं जो काफी लंबे समय से अर्थ के सरफेस पे हैं, एंड बिकॉज ऑफ द इरोजनल जो एजेंट्स होते हैं, चाहे वो विंड हो, चाहे वो वाटर हो या ग्लेशियर हो, इसकी वजह से भी कई बार जो स्ट्रक्चर है माउंटेन का, जो रेंज है, उसमें इरोजन होता है और हमें इस तरह के रिलीफ फीचर्स दिखाई देते हैं। जैसे अरावली रेंज है इंडिया के अंदर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज अरावली, जो कि प्राइमरली राजस्थान में पाई जाती है, और उसमें ये वाले हमें माउंटेन्स, रेसिड्यूअल इरोजनल माउंटेन्स दिखाई देंगे, क्योंकि काफी डिन्यूडेड होते हैं विंड एक्शन और प्राइमरली वाटर एक्शन की वजह से काफी हद तक वो डिन्यूडेड हो जाते हैं। So that is how we go for classification of the mountains on the basis of their origin. These are fold mountains, block mountains, volcano mountains primarily, and residual or erosional mountains. So this is all for this lecture. I will meet you again with a interesting term next time in this Geography Explained series. Stay tuned.